یہ جو دعائے استخارہ ہے، اگر آپ اس کی اہمیت پر بات کریں، صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے، کما یعلمون السورۃ من القرآن، جیسے آپ کوئی قرآن کی ہمیں سورت سکھایا کرتے ہیں۔ اس میں 4 پوائنٹس ہیں اسی حدیث میں جو کم سے کم ہر مسلمان کی نالج میں ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ان الفاظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس دعا کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ آپ نے کسی اور دعا کے لیے نہیں سنا ہوگا کہ صحابہ نے کہا ہو کہ رسول اللہ نے ہمیں اسے ایسے سکھایا جیسے قرآن کی صورت۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ منکرین حدیث ساری دعاؤں کو اور ساری حدیثوں کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، but if they really have a logic in their mind، اس کو کیسے ریجیکٹ کریں؟ دعا استخارہ کہ رسول اللہ ایسے سکھاتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت سکھاتے تھے۔ تو 4 پوائنٹس یاد رکھیں۔ نمبر 1، ان کمپیریزن ٹو قرآن کی صورت، کیا قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتوں میں ایڈیشن سبٹریکشن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پوائنٹ نمبر 1، جیسے قرآن کی صورتوں میں تغیر، تبدیلی، ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا۔ ان the same manner دعائے استخارہ میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے آپ نے سکھایا، یہ کیسے مانگا جائے گا، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اس کا آؤٹ کم اپنے ذہن میں کیا رکھنا ہے، یہ سارے کا سارا میتھڈ، آؤٹ کم، پروسیجر، ویژن دعائے استخارہ کا اس لائک سورۃ القرآن، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ نمبر 2، کیا قرآن کی صورت کو عربی میں پڑھا جاتا ہے؟ دعائے استخارہ is preferred to offer in Arabic, recite in Arabic، بعد میں ترجمہ پڑھیں۔ جب آپ دعائے استخارہ پڑھنا چاہ رہی ہیں تو آپ اس کو پہلے عربی میں پڑھیں گی، جیسے کہ آپ قرآن پہلے عربی میں پڑھتی ہیں پھر آپ ترجمہ پڑھتی ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں قرآن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، عربی نہیں لکھی ہوئی، اور وہ آپ سے آگے کہتے ہیں کیا ہم اس کو قرآن کہیں گے؟ چھپی ہیں ایسے کتابیں، اردو کے ترجمے، انگریزی کے ترجمے وداؤٹ عربک ٹیکسٹ، وہ قرآن نہیں ہے۔ دیٹس the transliteration of قرآن، it's not a قرآن۔ قرآن کے لیے عربی ہونا لازمی ہے۔ فائن، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کو قرآن کی صورت کے ساتھ اتنا اٹیچ کر دیا تو صحابہ کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ترجمہ پڑھنا چاہیں، کیونکہ ہم اجمی ہیں، ہماری لینگویج عربک نہیں ہے، سو نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ ریلیٹڈ ٹو پوائنٹ نمبر 2، جیسے قرآن کی صورتیں میمورائز کی جاتی ہیں، مسلمان امت میں یہ پریفرڈ ہے، پسندیدہ ہے کہ ہم دعائے استخارہ یاد کریں۔ بس نہیں ہے، پسندیدہ ہے، بڑی بہت ہے کہ بہت سے لوگوں کو بہت آسانی سے یاد نہیں ہوتی، بٹ اگر آپ مستقل پڑھنے والی بن جائیں گی 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ 3 پوائنٹس ہو گئے۔ 1، تغیر نہیں ہو سکتا، 2، عربی میں پڑھنی ہے، 3، اس کا حفظ کرنا ہے، اور 4، ہر اس کام کے لیے پڑھنی ہے جو آپ کا مباح کام ہے اور آپ نے 2 میں سے 1 کام کو سلیکٹ کرنا۔ فائن، اچھا، ہم کہتے ہیں دعائے استخارہ جس میں ہم خیر طلب کرتے ہیں، یہ پڑھی جاتی ہے کسی 2 کاموں میں سے 1 کام میں چوائس کرنے کے لیے۔ تو اب یہاں خیال رکھیے گا یہ دونوں کام مباح ہونے چاہیے، واجب نہ ہو، حرام نہ ہو، مکروہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے میں استخارہ پڑھ کر دیکھتی ہوں زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں، حج کروں یا نہ کروں، ہیں آپ کے پاس پیسے الحمدللہ، اور آپ استخارہ نہیں کریں گے، آپ نے حج کیا بھی نہیں ہے، حج آپ پر فرض ہو گیا ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہی ہیں استخارہ کر کے دیکھتی ہوں حج کروں یا نہ کروں۔ نہیں، ہاں آپ استخارہ کر کے یہ دیکھ سکتی ہیں کہ حج کا پیکج کون سا ہے، صحیح، بٹ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ استخارہ کرو حج کروں یا نہ کروں۔ آپ کا بیٹا ہے جوان 22 سال کا، گرل فرینڈ بناؤں یا نہ بناؤں، استخارہ کر لیتا ہوں۔
भाई से बस खाली बेटे को क्यों ठोक दूं मैं बेचारे को, आपकी बेटी है, बॉयफ्रेंड बनाओगे ना बनाओ, इस्तिखारा कर लेते। नो, इट्स हराम थिंग, कंप्लीटली अबैंडन्ड इन इस्लाम। यहाँ नहीं इस्तिखारा हो सकता, मुबाह कामों में इस्तिखारा हो सकता है। बाज मुबाह कामों में भी स्कॉलर्स कहते हैं वन हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर। कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर निकाह करना, कोई इंसान इस चीज पे क्या है, जिंदगी में निकाह करूं या ना करूं इस्तिखारा कर लेते हैं। नहीं, इस चीज का इस्तिखारा नहीं है। इस्तिखारा है दो रिश्ते हैं, दोनों में से किसको अपने लिए पसंद करो, यहाँ इस्तिखारा किया जाता है। ये सब वो चीजें हैं जो इल्म के साथ ज़हन को वुसअत देती हैं। अगर हम इनकी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम मिसकॉन्सेप्शंस के पीछे भागते जाएंगे, हम मिसकॉन्सेप्शंस के साथ इनको ट्रीट करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है मदीना में, सहाबा कराम इस्तिखारा करते हैं किस चीज़ के लिए, कि आपकी लहर बनवाई जाए या कब्र बनवाई जाए। दोनों में फर्क है, सबको पता है ना। कब्र वो है जो हमारे माशरे में बनती है, सीधा गड़ा, फाइन। लहर वो होती है जो साइडवेज ड्रॉर की तरह बनती है, साइडवेज में दीवार पहले गड़ा खोदेंगे, फिर राइट और लेफ्ट किसी एक साइड में अंदर ड्रॉर की तरह फर्दर डिगिंग होती है, फिर उधर प्लेस कर देते हैं मुर्दा को अंदर। तो इसमें दो मुर्दे आ सकते हैं, गड़ा खोदा आपने, और तीन आ सकते हैं, एक कब्र में, एक राइट वॉल में, एक लेफ्ट वॉल में। ठीक है, तो लहद भी बनती थी उस दौर में भी और कब्र भी बनती थी। सहाबा कराम ने, क्योंकि उनको इतनी आदत थी टू टेक एनी डिसीजन इस्तिखारा करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है, सहाबा कराम इस्तिखारा करते हैं। और इस्तिखारा करके ये नहीं, अब कैसे पता चलेगा कि सारे लोगों ने इस्तिखारा किया है, तो किसका इस्तिखारा नहीं कर रहा है, किसका इंक्लिनेशन नहीं कर रहा है। हम जैसे होते तो हम कहते हैं आपको हरी पत्ती नजर आई कि लाल पत्ती, तो हम है ना। पिलो के नीचे रख के सो गए हैं हाँ और ना, और उठने के बाद आंखें बंद करके जो हाथ में आया। कार्ड्स खेल रहे हैं क्या? ये हम हैं। तरीके का आप देखें, अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। जितना दुआ इस्तिखारा पढ़ने के बाद आपको इस्लाम का मॉडर्न होना नजर आता है, सेंसिबल होना नजर आता है, उतना शायद ही किसी दुआ को पढ़ के आपको नजर आता हो। इस्तिखारा किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया हम लहद वाले को भी बुला लेंगे और कब्र वाले को भी बुला लेंगे, जो पहले आ जाएगा अल्लाह की तरफ से साइन होगा कि हम वो वाला तरीका अडॉप्ट करें। ये सेंसिबल अप्रोच होती है। सहाबा कराम इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीक़ाकार को सीख कर जिंदगी में अप्लाई किया करते थे। अब इस्तिखारा असल में क्या है और कैसी इबादत है? एक आपने सुना होगा दुआए इस्तिखारा, और एक आपने टर्म सुनी होगी सलातुल इस्तिखारा। सलातुल इस्तिखारा में लिखा होता है इसलिए कि दुआए इस्तिखारा का एक प्रॉपर डेकोरम है जिसको आप 2 रकअत के साथ पढ़ते हैं। पहले तो ये समझ लें कि हमारे कल्चर में जो चीज़ें मिसकॉन्सेप्शन की तरह मौजूद हैं, पहले उसको अलग कर देते हैं, फिर मैं आपको तरीका इस्तिखारा बता दूंगी, सलातुल इस्तिखारा। तो 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर रही हूँ अपनी गुफ्तगू को। एक है मिसकॉन्सेप्शंस जो हमारे यहाँ आम और राइज हैं, और दूसरा है दुआए इस्तिखारा का तरीक़ाकार, मेथोडोलॉजी प्लस आउटकम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर गए हैं कि कैसा देखा जाएगा। जब आप मिसकॉन्सेप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ एक बात समझ जाएं, दुआए इस्तिखारा का पढ़ना मैजिक 8 बॉल की तरह एक्ट नहीं करता। मैजिक 8 बॉल मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में मैजिक 8 बॉल एक आप कह सकते हैं मैजिक बॉल होती है, उसके सामने खड़े होकर आंटी पूछती हैं कि शुड आई गो टू शॉपिंग टुडे, तो बॉल में से आ जाती है या यू कैन, उसके बाद आंटी शॉपिंग पे चली जाती है। अगर बॉल ने कहा नो इट्स बेटर नॉट टू गो, तो आंटी शॉपिंग पर नहीं जाते। दुआ इस्तिखारा में आपके सामने कोई स्क्रीन आके आपको मशवरा देने वाली या फरिश्ता कान में विस्पर करने वाला कुछ भी नहीं होने वाला, कोई मैजिक चीज़ नहीं होगी कि आपने कहा मैंने आज दुआ इस्तिखारा पढ़ी और अब मेरे घर में सुकून हो गया, अब मेरा घर महल बन गया, अब मैं कारोबार में यहाँ से वहाँ पहुँच गई। सुनो, मैजिक एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा। हम कहते हैं इस्तिखारा करूँगी, क्लैरिटी ही नहीं मिल रही बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैजिक। कोई मैजिक नहीं होने वाला।
कोई मैजिक नहीं होगा। सो नंबर वन मिसकॉन्सेप्शन निकाल के फेंक दें। इस्तिखारा करने के बाद इमीडिएटली आपके सामने कोई शीट ऑफ रिजल्ट नहीं आने वाला कि आपको पता चल जाए ओके इन दो में से ये काम कर लो बीबी, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, इस्तिखारा करना कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स अमल नहीं है। ये हमारे माशरे का नोशन है और ये नोशन हमारे कल्चर में दे दिया गया है और ये हमारे कल्चर में आया है बहुत पीछे तारीख में दूसरे मज़ाहिब से। मुसलमान कैसे नहीं थे इस्तिखारा के बारे में? ये जो हमारे वहाँ कल्चर आ गया इस इस्तिखारा के अमल को बहुत मुश्किल बनाने वाला और किसी से करवाने वाला, ये आया है हमारे पास क्रिश्चियन से और ज्यू से, अहले किताब से। इसलिए कि अहले किताब में ट्रेंड था कि वहाँ जो दीनदार लोग होते थे, जो उनके रैबाइज होते थे, जो उनके स्कॉलर्स होते थे, वो ये काम किया करते थे कि वो सारी दीन की तालीम कॉन्सेंट्रेटेड अपने पास रखते थे और वो लोगों के लिए सेट ऑफ लॉज बनाया करते थे। फिर क्या करते थे? सिर्फ सेट ऑफ लॉज नहीं बनाते थे, लोगों के बिहाफ पर दुआएं किया करते थे। फिर सिर्फ ये नहीं करते थे, फिर लोगों से कहते थे हम तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड कस्टम मेड कानून बना देंगे, अमीरों का कानून अलग, गरीबों का कानून अलग। क्रिश्चियंस क्या करते थे? प्रीस्ट के पास जाएं, तौबा कबूल करवा लें, वो आपके लिए तौबा करेगा तो कबूल हो जाएगी। इन्हीं के जर्म्स हमारी सोसाइटीज में, मुस्लिम उम्मत में आ गए और हमने भी इस्तिखारा करने को, दुआएं मांगने को, फूंके मारने को कारोबार बना दिया। मार्टिन लूथर को जानते हैं? गो एंड रीड हिज बायोग्राफी। उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा है ही वेंट टू रोम और वहाँ क्रिश्चियनिटी में जब उसने देखा कि वहाँ दीन बिक रहा है, पैसे लेकर प्रीस्ट उनकी मर्जी के कवानीन बना रहे हैं, पैसे लेकर उनकी तौबा कबूल करवा रहे हैं, पैसे लेकर उनसे गुनाह की सबमिशन करवा रहे हैं। He left Rome and he converted to Islam। हमने वो उठाया है जो हमारे रसूल की सुन्नत नहीं थी। आपकी उम्मत में, आपके कल्चर में, आपके आसपास अगर लोग पैसा करके इस्तिखारा कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी टू से इट्स अ स्कैम, इट्स अ कारोबार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सिखाया। नंबर वन, दुआए इस्तिखारा पूरी की पूरी फर्स्ट कॉन्जुगेशन है। मैं आपसे मांगती हूँ अल्लाह मेरे लिए खैर लिख दे, मुझे खैर दे दे, मुझे बेहतरी दे दे, मुझे शर से दूर कर दे, मेरे लिए आने वाले खैर को बाबरकत बना दे। मैं तो आप किसी और के लिए कैसे मांग सकती हैं? पूरा कॉन्जुगेशन ही बदल देंगे आप तो। अब तो आप मैं नहीं कर सकती है ना। आप मुझसे कहें आप मेरे लिए इस्तिखारा करते और मैं ऐसे ही हदीस की किताब उठाकर दुआ पढ़नी शुरू कर देते हैं तो खैर आपको नहीं मिलनी, इसको मिलनी, मुझे मिल जाएगी। पता चला जो खैर आपको मिलनी थी वो मुझे मिल। कारोबार चल रहा पूरा पूरा, पैसे भी ले लिए खुदा ना खास्ता लेने वाले ने और जो खैर मिलनी थी वो भी मुझे मिल गई। दुआए इस्तिखारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, क्यों मैंने शुरू में ही बता दिया कि वो ऐसे सिखाते थे जैसे कुरान की सूरत सिखाते थे। आपके बताए हुए तरीके में तगय्युर नहीं हो सकता। अगर हमारी कौम ने ये किया, अगर हमारी उम्मत ने ये किया, देन इट्स अ डिजास्टर। इसको ठीक करने की जरूरत है। इल्म के साथ अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। किसी से नहीं कहते इस्तिखारा करा दो। ये मैं आपको बता दूं, कारोबार चमकाने वालों ने अवाम के अंदर क्या मशहूर कर दिया, ऐसे कि जैसे इस्तिखारा करना वो बहुत वलीउल्लाहों का काम है। जाहिर बात है आप इतनी गुनाहगार हैं, आपको थोड़ी इंक्लिनेशन होगी, मैं कर देती हूँ आपका इस्तिखारा, ये वाला मिजाज। और इंसानों के दिमागों में क्या डाल दिया, अवाम के दिमाग में, भाई तो गुनाहगार इस्तिखारा कैसे कर सकते हैं? अब बताएं भला, मौलवी साहब फरमा रहे हैं आप 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते, आपको इस्तिखारा करने का क्या फायदा? अगर आप मिंबर पर बैठ कर ये बोलेंगे तो बेचारा जो इस्तिखारा करने के लिए आगे बढ़ भी रहा था वो इस्तिखारा करने की जरूरत करेगा तो शर्मिंदा हो जाएगा। मैं तो फर्ज नमाज नहीं पढ़ता तो मैं इस्तिखारा कैसे कर सकता हूँ? मैं कबीरा गुनाह करता हूँ तो मैं इस्तिखारा कैसे कर सकता हूँ? इस्तिखारा तो आप मुबाह चीज में कर रहे हैं ना, इस्तिखारा आप कबीरा गुनाह के लिए तो नहीं कर रहे हैं। सो कीप अनदर पॉइंट इन माइंड और उस मिसकॉन्सेप्शन को हटा दें। हम कितने भी गुनाहगार हों, हम कितने भी ढीले ढाले मुसलमान, हम कितने भी गिरते पड़ते से रात मुस्तकिल पर चलते हो,
हम कितनी भी टूटी फूटी नमाजें पढ़ते हो, टूटे फूटे रोजे रखते हो, इवन देन अगर आपको इस्तिखारा करना है, डू इट योरसेल्फ। गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी इस्तिखारा कर सकता है। क्या पता ये इस्तिखारा करना ही मुझे ये एहसास दिला दे, यस आई कैन एक्सेस माय गॉड टू। मैंने नमाजों के जरिए अब तक उसको एक्सेस नहीं किया। क्या पता इस्तिखारा में दुआ के लिए हाथ उठाना मेरा उस रब के साथ एक ताल्लुक बना दे जो अब तक नहीं बना था। तो दुआई इस्तिखारा, सलातुल इस्तिखारा कोई भी कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में ये नहीं बताया कि दुआई इस्तिखारा रात के वक्त में करके फिर सोना है। इस्तिखारा करने से पहले किसी से नहीं बात करनी, इस्तिखारा करने के बाद किसी से बात नहीं करनी। ये हमारे माशरे में आपने सुना होगा। फिर सुबह उठ के भी किसी से बात नहीं करनी। मैंने सोचना रात में ख्वाब में क्या देखा था। कोई ऐसी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, कोई भी इस तरह की चीज नहीं। आपको ख्वाब में क्या नजर आता है, आपको क्या नजर नहीं आता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारा के साथ ख्वाबों की रिलेटेबिलिटी नहीं बताई है। नाउ दिस इज अंडरस्टूड। एक नौजवान है, सही नौजवान 25 साल का 26 साल का, उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। उसकी अम्मा कहती है बेटा इस्तिखारा कर लो। सही, अब सुबह उठ के भंगड़े डालता हुआ है, अम्मा मुझे तो ख्वाब में भी दुल्हन नजर आ गई। मेरे जैसे अम्मा तो क्या जाहिर बात है सारा दिन उसको विजुअलाइज करते रहोगे तो ख्वाब में दुल्हन ही बड़ी नजर आएगी ना। ख्वाब से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इनकरेजमेंट ले सकते हैं, बट तमाम फुक़हा और स्कॉलर्स इस बात पर कंसेंसस रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अटैच नहीं किया आपका डिसीजन ख्वाब के साथ। इट्स वेरी कॉमन, अगर आपने ड्रीम्स के बारे में पढ़ा है, हदीसुन नफ्स, जो सारा दिन आप सोच रहे होते हैं, रात में आपको ख्वाब में कोई नजर आता है। बिल्ली को ख्वाब में क्या नजर आएगी? थैंक यू। तो ख्वाब के जरिए अपने ख्वाब, अपने इस्तिखारा का डिसीजन डिसाइड करना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें कहीं नहीं मिलता। इस्लाम बहुत लॉजिकल रिलीजन है और बड़े लॉजिक से बात करता है। पहली बात तो ये हो गई इस्तिखारा खुद करना है। दूसरी बात ये हो गई ये कोई मैजिक नहीं है। तीसरी बात ये हो गई कि आप किसी से इस्तिखारा नहीं कराएंगे, चाहे वो अपने आप को कितना भी गुनाहगार समझते हैं। आपने इस्तिखारा खुद करना है और अल्लाह से मदद मांगनी है। आखिरी बात, इस्तिखारा करने के बाद इस्तिखारा का आउटकम, आपको क्या ख्याल है इस्तिखारा करने के बाद आपको एवटार्स नजर आना शुरू हो जाएंगे? एवटार्स को जानते हैं? 3D ख्वाब नजर आएगा? नहीं, ना 3D ख्वाब नजर आएगा, ना एवटार नजर आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। इट्स द इंक्लिनेशन ऑफ योर हार्ट जो अल्लाह आपको सिखा रहा है। वही नहीं आती अब, लेकिन दिलों में इल्हाम होते हैं, दिलों में इल्हाम होते हैं। जब अल्लाह का बंदा दुआए इस्तिखारा करके अल्लाह से खैर मांगेगा, उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, आपका खैर वो खैर नहीं देगा, वो खैर देगा। तो कैसे देगा? He gonna put in your heart, इंक्लिनेशन आएगा। अब होता ये है, हम बहुत सुपरफिशियल लोग हैं, स्पिरिचुअली लो लोग हैं, दुनिया परस्त लोग हैं। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारे ईमान मजबूत नहीं है। इंक्लिनेशंस आ रहे होते हैं, हम रीड नहीं कर पा रहे होते, और फिर हमें लगता है कि अच्छा असल में मैं नेक नहीं हूं ना, इसलिए ना मैं इस्तिखारा करके भी कंफ्यूज रहती हूँ। देयर इजंट एनी सच थिंग। नेक से नेक इंसान भी बाज़ों का कंफ्यूज रह सकता है, कोई बात नहीं। मे बी ही नीड मोर टाइम, मे बी ही नीड मोर इस्तिखारा, मे बी ही नीड मोर टाइम टू आस्क अगेन इन दुआ फ्रॉम रब।